Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Maida Kazmi and I am going to teach you the course of linear algebra with course code MTH231. Today this is first lecture and I am going to consult the book of linear algebra with name Introduction to Linear Algebra. And this is the author of this book is Bernard Coleman, and this is 8th edition. In this book we are going to start chapter number 1 for our starting topics. Before starting our course, I am going to tell you some of very important applications of this course, linear algebra, especially in computer science. पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद मज़ीद भी different courses के अंदर ये linear algebra की बहुत importance है. First of all, this is coding of binary information and error detection. Data items are transmitting from point to point or recorded in various forms to represent video images, sounds, or combinations of these. Coding is the branch of information and communication theory that has developed techniques that help in detecting and sometimes correcting errors. These techniques include linear as well as abstract algebra, number theory, probability, statistics, and combinatorics. In programming, this course is very important, and the airline industry, for instance, employs linear programs that schedule flight crews, monitor the location of aircraft, or plan the varied schedules of support services such as maintenance and terminal operations. In electrical networks, engineers use simulations software to design electrical circuits and microchips involving millions of transistors. Such softwares rely on linear algebra techniques and system of linear equations. In the start of this course, we are going to study linear equations, and this our chapter 1 will be on linear equations and matrices. In this chapter, we will study about linear equations and their solutions without matrices and using matrices. Before I go on matrices, first we will go to study what are the linear equations, and after that we will go towards the solution. These are some examples of equations which are known as linear equations. This first equation is 3x1 minus 5x2 is equal to 4x1, and x1 minus 5x2 is equal to 4x2 plus 5. These are two linear equations and can be simplified to this. We can first equation we can write as 3x1 minus 4x1, that is minus x1, minus 5x2 equals to 0, or we can write this equation as taking minus outside, and this will become x1 plus 5x2 is equal to 0. This second equation contains x2 on the left side as well as on the right side. So we can simplify these two terms that contain x2 simultaneously. हम इन दोनों को solve कर लेते हैं. Then this equation will become x1 minus 4 plus 5 x2 is equal to 5. So now we come on these two examples. These are not linear equations, and we can judge
these equations by these factors. For example, in first equation we have x1 minus x2 plus x2 x1 equals to 0. तो हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा कि x1 और x2 तो मौजूद थे, वो हो सकते हैं इक्वेशन के अंदर, लेकिन कोई टर्म जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म में नजर आ रहे हैं x1 और x2, तो ये लीनियर नहीं रहेगी, और यही टर्म x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 ये इस इक्वेशन को नॉन लीनियर बना रही है. Similarly, in second equation you can observe a square here on x2, so this is also a non-linear equation. तो हम linear equation किसको कहेंगे? How can we express an equation that is a linear equation? So this is the standard form of a linear equation in variables x1, x2, x3 up to xn. तो जरूरी नहीं है कि दो variables में linear equation हो, ये मोड भी हो सकते हैं. a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus up to an xn is equal to d, where a1 a2 and so on up to an are real or complex numbers and d is also a constant. So this any equation which can be expressed in this form, that is a linear equation, राइट. और यहाँ पर यू कैन ऑब्जर्व कि कोई भी प्रोडक्ट में टर्म नहीं है, कोई किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं, तो सब लीनियर फॉर्म में है, यानी सबकी पावर 1 है. नाउ वी कम ऑन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो एक इक्वेशन की तो हमने रिप्रेजेंटेशन देखी है, लेकिन एक इक्वेशन से ज्यादा भी इक्वेशन हो सकती है. अगर ज्यादा इक्वेशन होंगी तो वो एक सिस्टम हम उसको कह सकते हैं, जहां जैसे कि यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 इक्वेशंस नजर आ रही हैं, और ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस हैं. तो दिस इज नोन एज सिस्टम ऑफ 5 लीनियर इक्वेशंस. इसमें कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है, कहीं कोई टर्म्स प्रोडक्ट में नहीं है, सारे वेरिएबल्स की पावर सिंगल है. A system of linear equation with m equations and m variables. तो ये we can write this as, अब एक सिस्टम की भी एक जनरलाइज्ड फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो ये लिखी हुई है a11 x1 plus a12 x2 and up to a1n xn is equal to d1. In second equation will be a21 x1 plus a22 x2 plus up to a2n xn is equal to d2 and so on. तो ये लास्ट में इक्वेशन हम अगर mth इक्वेशन ले लें तो am1 x1 plus am2 x2 and so on amn xn is equal to dm. So here we have n variables and m equations, right? And here is some physical interpretation of solution of a linear equation और linear system of equation कहना चाहिए. यहाँ पर दो लाइंस हैं L1 और L2. तो अगर फिजिकली देखें, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ बना लिए जाएं, तो वो जिस एक पॉइंट के ऊपर, अगर तो वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो जो एक पॉइंट है दैट इज नोन एज यूनिक सोल्यूशन. इसके अलावा भी और चांसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूनिक हो. ये एक और प्रॉब्लम है कि जिसमें यूनिक सोल्यूशन की एक एग्जांपल है. ये इसमें हम 3 इक्वेशंस को लेके सॉल्व करेंगे. यूनिक सोल्यूशन हो सकता है अगर 3 इक्वेशंस हों उसमें भी, और इन 3 इक्वेशन के साथ हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं. मसलन हमने कुछ ऑलरेडी स्टडी किया भी हुआ है कि जब 3 इक्वेशंस हों तो उसमें हम 1 बाय 1 एलिमिनेट कर देते हैं वेरिएबल को. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर x एलिमिनेट कर सकते हैं पहली 2 इक्वेशन में से. फर्स्ट इक्वेशन में x नजर आ रहा है और सेकंड में 2x है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ से x एलिमिनेट कर सकते हैं. तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये y और z में रह जाएंगी. फिर हम इसी तरह से
y एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में से। पहली इक्वेशन में 2y है और दूसरी में 3y है। तो अगर हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे क्या होगा कि ये भी 6y हो जाएगा, ये भी 6y हो जाएगा। अब उससे ये होगा कि ये दोनों एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ है। एडिंग दीज टू इक्वेशंस वी विल हैव कि y एलिमिनेट हो जाएगा। तो x विल बी इन टर्म्स ऑफ z और पहले हमने जो किया था y विल बी इन टर्म्स ऑफ z। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जिसमें कि x जो है वो भी डिपेंडेंट ऑन z है और y भी डिपेंडेंट ऑन z है। तो ये दो एक्सप्रेशंस जो हैं इनको हम लेके थर्ड इक्वेशन में देखेंगे कि वो आया के सेटिस्फाई करता है, यानी x की जगह पर इन टर्म्स ऑफ z कोई वैल्यू देंगे और इसी तरह से y की जगह पर भी इन टर्म्स ऑफ z कोई वैल्यू देंगे तो ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी z की फॉर्म में। तो यहां से हमें z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। By taking that value of z, we will put that value of z in any equation. First में for example हम z को की वैल्यू देते हैं तो वो x और y में इक्वेशन आ जाएगी और सेकेंड इक्वेशन में z की जगह वैल्यू देंगे तो वो भी x और y में आ जाएगी। तो अगेन x और y में इक्वेशन है तो उसको हम उसमें से पहले x एलिमिनेट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह फिर y एलिमिनेट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से x और y भी फाइंड हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू 1 आएगी, y की -2 और z की 3। तो क्योंकि तीन वेरिएबल्स में इक्वेशन थी तो तीनों की एक सिंगल या यूनिक वैल्यू हमारे सामने आएगी जो कि तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करती होगी। सो दिस वी विल कॉल एज अ यूनिक सॉल्यूशन for a system of linear equations with 3 variables. Okay. Now we can have some other type of solutions जैसे कि हमने अभी देखा कि दो वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन आया और इसी तरह से 3 वेरिएबल्स के साथ भी हमने देखा कि एक यूनिक सॉल्यूशन मौजूद है। ये ऐसी एग्जांपल है कि जिसमें अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 लाइंस हैं और पहले ग्राफ में देखें आप तो अगर हम दोनों लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों लाइंस ऐसी हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, राइट। तो पैरेलल लाइंस तो हमें पता है कि वो आपस में कट नहीं करेंगी, सो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। लेकिन एक और भी तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है, दैट इज नोन एज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। उस केस में क्या होता है कि जो एक लाइन की इक्वेशन है वही दूसरी लाइन की इक्वेशन है, या यूं कहें कि उसी लाइन की इक्वेशन को आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो लाइन बनेगी उसमें से बाद में हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली वो सेम लाइंस होती हैं दोनों। तो या समटाइम्स एक ही लाइन दे दी जाती है, तो अगर एक ही लाइन है वो अपने साथ इंटरसेक्ट करे, एक लाइन की इक्वेशन है और दूसरी भी उसी लाइन की इक्वेशन है, तो जब हम ग्राफिकली देखेंगे तो एक लाइन एग्जैक्टली दूसरी लाइन के ऊपर पड़ी हुई है तो उसका हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। In other words, we can say there are infinite solutions of this problem. या हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक ही लाइन गिवन है हमें 2 वेरिएबल्स में तो उसका without finding solution we can write that there are infinite solutions, right? Here we have the example. मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं यहाँ पर, जो अभी हमने बात की उसी को ही हम यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं। मसलन पहले मेरे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू -7 है एक लाइन और 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 7 दूसरी लाइन है। तो इफ वी ट्राई टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस देन वी विल फाइंड दैट देयर इज नो सोल्यूशन। कैसे पता चलेगा कि इन दोनों लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं है?
फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है कि हम अलजेब्रिकली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। मसलन फर्स्ट इक्वेशन में भी x और y दो वेरिएबल्स हैं, दूसरे में भी x और y हैं, बट इनके कोएफिशिएंट डिफरेंट हैं। अगर पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन दिस विल बिकम 2x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 14। तो इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड वन वी विल हैव 2x will be cancelled with 2x and this is minus 3y plus 6y, that is 3y is equal to minus 14 minus 7 minus 21. So here we can see k 0 is equal to minus 21, which is not possible. ऐसा नहीं हो सकता कि 0 और minus 21 बराबर हो. Therefore we can say that here is some kind of contradiction कि 0 minus 21 के बराबर है. Therefore we can say that there is no solution of this problem. B part में A equation given है और इसके साथ दूसरी लाइन कोई नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये एक ही लाइन है जो अपने साथ इंटरसेक्ट कर रही है. सो देयर इज एवरी पॉइंट दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. सो वी हैव हियर टॉकिंग अबाउट कि किस किस तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स एंड 2 अननोन्स. वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज. 2 वेरिएबल्स और 2 अननोन्स के साथ हमने इस तरह के सॉल्यूशन देखे हैं कि या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या नो सॉल्यूशन हो सकता है. यही हमने 3 वेरिएबल्स और 3 अननोन्स के साथ देखा है कि उसमें भी हमारे पास एक हमने प्रॉब्लम किया जिसमें कि यूनिक सॉल्यूशन आया. These systems are known as consistent and inconsistent system. Consistent system क्या होता है? A system of linear equations is said to be consistent if it has either one solution or infinitely many solutions. और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी ऐसा सिस्टम जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, दैट सिस्टम इज नोन एज इनकंसिस्टेंट. ओके, नाउ वी डिस्कस. ये सारा कुछ हमने अलजेब्रिकली इक्वेशंस को सॉल्व किया है. इसको जो बुक ने कहा है, दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, कि हम वेरिएबल एक को एलिमिनेट कर देते हैं फिर दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं, या इस तरह से हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करते हैं. तो हमारे पास अलजेब्रिकली इक्वेशंस को सॉल्व करने का यही एक इसकी टेक्निक है, एलिमिनेशन मेथड से. इसके बाद हम मैट्रिसेस के थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके लिए हमें मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है. तो हम रिकॉल करते हैं मैट्रिसेस को. ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स. फॉर एग्जांपल, ये हमें पता है कि ये 3 रोज और 4 कॉलम्स के साथ एक मैट्रिक्स है, यानी इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4. ये एक और यहाँ मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज हैं. इस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, या इसको समटाइम्स वेक्टर भी कह दिया जाता है. इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है. Here we are going to define some specific matrices जो हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड हैं. One is the matrix of coefficients and the other is augmented matrix. So if we write matrix of coefficient for this system, then we will leave these numbers on the right side of the equations, that is 0, 8 and minus 9, and we are going to write just
the coefficients of these variables on the left side. तो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट होगा 1 -2 1 पहली रो होगी इसकी, दूसरी रो में हम x1 नहीं है therefore इसका कोएफिशिएंट 0 है, 0 +2 and -8. Third row will be -4 5 and 9. So this will be matrix of coefficient. और अगर augmented matrix लिखेंगे तो ये सारा पार्ट वैसे ही होगा, एक और कॉलम ऐड हो जाएगा 0 8 और -9 के साथ. इसको आमतौर पर यहाँ पर डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को. ये लास्ट कॉलम को यहाँ इसको डॉटेड लाइन से सेपरेट कर दिया जाता है. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है और ये उस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है. ये एक एग्जांपल है, इसमें एक और सिस्टम लिखा हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो पहली इक्वेशन है उसमें x1 और x2 मिसिंग है, यानी उनके कोएफिशिएंट 0 हैं, सिर्फ x3 का कोएफिशिएंट 3 है. सेकेंड इक्वेशन में 1 5 और -2 है, 1/3 2 और 0. These are the coefficients of these variables. और राइट साइड पर हमारे पास 9 2 और 3 है. तो इसी तरह से हमने दोबारा से मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट लिखा तो वो ये आ गया. और अगर इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं तो ये आ जाता है 9 2 और 3 के साथ एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, यानी इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ऑर्डर फिर 3/4 बन जाएगा. Okay, if this is the augmented matrix of a system of linear equations, write down the system of linear equations. अच्छा, हमारे इस कोर्स में हमें जब एक सिस्टम लीनियर सिस्टम लिखा हुआ इक्वेशंस का तो हमें वहां से शिफ्ट करना पड़ता है, मैट्रिक्स निकालना पड़ता है वहां का. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स समटाइम्स हमें रिक्वायर होता है, समटाइम्स हमें मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए होता है, समटाइम्स हमें मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट से वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे जाना पड़ता है, या फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे जाना पड़ता है. तो हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन स्विच बिटवीन इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस. तो ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का. वी डोंट नो व्हाट आर द वेरिएबल्स, लेकिन हम खुद कोई वेरिएबल यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं. मसलन अगर मैं x y z और w भी ले सकती हूँ, मुझे अगर x1 x2 x3 और x4 लेना हो तो उसमें भी कोई मसला नहीं है. सो ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे, हम इसको x y z w इस फॉर्म में ले लेते हैं. तो अगर n वेरिएबल्स हों तो हमारे लिए आसानी कि हम x1 x2 x3 x की फॉर्म में ही सारे वेरिएबल्स ले लेते हैं. तो यहाँ पर अगर हम लिखें इक्वेशन, देन इट विल बिकम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखें तो ये 3 रोज हैं, इसलिए 3 लीनियर इक्वेशंस होंगी. फर्स्ट वन इज 2x1 -2 x2 मिसिंग है, x3 -2 x3 is equal to 5. Similarly, second equation will be 7x1 plus 2x2 plus 5x3 is equal to 0. And last row will give x1 plus 4x2 plus 5x3 is equal to 10. तो ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है जिसका कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है. तो इससे फर्दर फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास ये लीनियर सिस्टम है तो इसका ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज करके हम कैसे सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. राइट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मैट्रिसेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करके कुछ टेक्निक्स डिफाइन करेंगे, जो कि टेक्निक्स हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन पे ले जाएंगी इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज.